Well, Sairam, to all of you, let's keep on reading the chapter that we were doing yesterday. We were doing environment, right? Yes, ma'am. Yes, ma'am. All right, all right, all right. Let's just wait for a few more minutes for your classmates to arrive and then I'll start. Sairam, ma'am. Sairam, beta. Sairam, ma'am. Okay, Sairam, to all of you, I'll start the class and we will continue with what we were doing yesterday. The human environment portion was left, so we will start by that, and after that I'll cover up the question answers today. Okay, so be ready with your question answers as well. Our environment is a system that supports life. Every place on Earth displays a different flora, fauna, and landscape. Nature is truly diverse. The human environment involves interactions among people, their activities, and creations. Is the human environment as diverse as a natural environment? Look at the people around you. They belong to different races and practice different faiths. Hinduism, Christianity, Islam, and Judaism are some of the world's major religions. There is diversity in the way people greet each other too. While in India, most people will greet you with a namaste or a handshake, in some countries, people greet each other with a hug. What's more, people even speak in different languages and follow distinct scripts. While languages like English and German follow the Roman script, regional languages like Hindi and Marathi are based on the Devanagari script. In the human environment, there is diversity in occupations too.
While those living in rural areas are involved in fishing or agriculture, people in urban areas work in offices or factories. Do you now think that the human environment is as diverse as the natural one? Our environment provides us with air to breathe, water to drink, food to eat, and land to live. These help us sustain life. We, therefore, need to be mindful that we protect the environment and treat it with care. Next, let us look at some of the changes human beings brought about in the environment. Human beings began modifying the environment a long time ago. We started growing crops and domesticating animals. Industrialization brought about major changes. Slowly but steadily, we modified the environment. Development of infrastructure for transport and communication further changed the environment. Over the years, our environment has undergone drastic changes. Today, we need to maintain a balance between human life and nature. So, what is the state of environment today? Harmful emissions cause air pollution. Water is polluted due to garbage disposal. Deforestation is depleting the green cover and leading to global warming. We need to increase our green cover and reduce emissions. Though we cannot reverse the negative impacts on our environment, we can surely ensure a greener tomorrow. We need to reduce usage of electricity, reuse paper products, and recycle plastic items. Every small step will lead to a healthy environment. Are you ready to help make a difference? Do we have any issues regarding the video that we saw? It was quite clear, it was very precise. It was talking about how human beings interact with the environment and how the environment is impacted by human beings. Any questions, anyone? Ma'am, what is the meaning of faiths? If you have a question, you have to either raise a hand or you have to write Y in the chat box so that I may hand over the chance Yes, to speak to you. Yes, Jayavardhan. ma'am, what is the meaning of faiths? Beta kiska? Faiths. Faith means vishwas. Something that you believe in. Yes, Arush. मैम व्हाट आर 5 आवर्स मैम 3 आवर्स पहले होते थे ना मैम रिसाइकल रीयूज एंड थर्ड कुछ और तो मैम अभी 5 आवर्स Reduce, reuse, recycle. मैम 5 आवर्स मैम अब 5 आवर हो गए ना मैम तो 5 आवर 2 और आवर्स क्या है रुक जा. Refuse, reduce, reuse, repurpose, recycle. मैम ये क्या होता है रिफ्यूज मतलब इस्तेमाल ही नहीं करेंगे. रिड्यूस मतलब अगर यूज करेंगे तो उसे कम यूज करेंगे. रीयूज मतलब एक बार की बजाय जितनी बार यूज कर सके उतनी बार यूज करेंगे. रीपर्पस मतलब एक ही चीज को अलग अलग पर्पस के लिए यूज करेंगे. रिसाइकल मतलब उसका फॉर्म चेंज करके उसे फिर से यूज करेंगे. Yes. Any other question?
Yes, ma'am. बेटा तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर हो जाए तो जस्ट पुट योर हैंड डाउन सो दैट आई कैन गिव द चांस टू अदर पीपल. यस आतिश है. What is barter system? बार्टर सिस्टम मीन्स अ सिस्टम इन विच यू एक्सचेंज गुड्स फॉर समथिंग. अगर आपके पास पेंसिल है, आपको इरेजर चाहिए, तो आप पेंसिल को इरेजर से एक्सचेंज करते हैं. बार्टर मीन्स द एक्सचेंज ऑफ गुड्स. यस जयवर्धन. Ma'am, what is the meaning of phenomena? फिनोमेना मीन्स अगर कोई भी चीज जैसे हो रही है, उसे हम लोग इंग्लिश में फिनोमेना कहते हैं. हिंदी के लिए रुको, मुझे उसका एक वर्ड ढूंढने दो. मैम उसे हिंदी में अद्भुत घटना कहते हैं मैम, जैसे कि कोई अद्भुत घटना होती है. फिनोमिनल अलग होता है बेटा, फिनोमेना अलग होता है, वो फिनोमिनल होता है. फिनोमेना मतलब यहाँ पर बता रहे हैं ऑब्जर्वेबल फैक्ट और इवेंट, जिसको आप ऑब्जर्व कर सकते हैं. एनीथिंग एल्स? Okay, then I will move ahead to question answers. Yes, ma'am. बीच में कोई नहीं बोलेंगे. आपको रूल्स पता है क्या है मीटिंग के और क्वेश्चन आंसर्स के? Ma'am, may I give the first answer? मैंने पूछा क्या आपसे? अभी क्या बोला मैंने? रूल्स क्या है? मैं क्वेश्चन पूछूंगी, आपको आंसर देना. यू विल ईदर रेज योर हैंड और यू विल राइट ए इन द चैट बॉक्स. मुझे जो लगेगा कि मुझे जिससे पूछना है मैं उससे पूछूंगी. ऑल राइट. व्हाट इज एन इकोसिस्टम? वैशाली बताओ. Yes, ma'am. Page number 4. And it is a system formed by the interaction of all living organisms with each other and with the physical and chemical factors of the environment in which they live, all linked by transfer of energy and material. बेटा हमें ना पेज के साथ साथ लाइन नंबर भी बताना पड़ेगा ताकि सबको इजीली मिल जाए. Yes, ma'am. Ma'am, page number 4, वो glossary, in glossary. Okay, okay, okay. I understood. Thank you. Next question. What do you mean by natural environment? आतिश है, बताइए. Yes, ma'am. Land, water, air, plants and animals comprise the nature environment. You are familiar with the meaning of lithosphere, hydrosphere, atmosphere, bio and रुको 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 वही रुको. यू आर फेमिलियर विद द, ये हम आंसर में नहीं लिखते कभी भी. ये सही तरीका नहीं है आंसर देने का. आंसर रिफ्रेश करो, फिर से बताओ. Okay, ma'am. Page number 3, natural environment. Land, water, air, plants and animals comprise the nature environment. ये तो उसके एग्जाम्पल हो गए. नेचुरल एनवायरनमेंट क्या है? आरुष बताओ. Ma'am, the land, water, air, plants and animals comprise the natural environment. बेटा ये तो एग्जाम्पल हो गए. नेचुरल एनवायरनमेंट क्या है? हिमांशु बताओ. मैम मैंने भी एग्जांपल से लिखा है मैम. बेटा एक बार अगर आपने इसमें ए लिख दिया है तो जब तक क्वेश्चन चेंज नहीं होता तब तक बार बार ए नहीं लिखेंगे. अगर मुझे किसी के 2 बार से ज्यादा दिखाई दे दी है, मैं उसको बिल्कुल आंसर देने का मौका नहीं दूंगी, मीटिंग से अलग बाहर निकाल दूंगी. किसी के पास कोई अलग आंसर है तो यहाँ पर क्यों लिखो. Anushka, do you have another answer? No, ma'am, I have the same one.
रुको मैं ढूंढती हूँ तुम्हारे लिए। मैम कौन सा वाला क्वेश्चन? नेचुरल एनवायरमेंट, यहाँ पे देखो, द नेचुरल एनवायरमेंट रेफर्स टू बोथ द बायोटिक एंड एबायोटिक कंडीशंस एग्जिस्टिंग ऑन अर्थ, फॉर एग्जांपल लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, दिख रहा है मेरा यहाँ पे जो कर्सर मूव कर रहा है? पेज नंबर 2 के एंड में लाइन है, द नेचुरल एनवायरमेंट रेफर्स टू बोथ बायोटिक एंड अबायोटिक कंडीशंस एग्जिस्टिंग ऑन अर्थ। फिर उसके एग्जाम्पल आप यहां से लिखेंगे, लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। विच आर द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरमेंट? अनुष्का बताओ। Yes, ma'am. It is a combination of natural and human-made phenomena. ये एक तो आंसर नहीं हुआ। भव्य। When lithosphere is the soil crust or the hard top layer of the earth, it is made up of rocks and minerals and covered by a thin layer of soil. It is an irregular surface, various landforms such as mountains, plateau, plains, valley, etc. क्वेश्चन क्या है, एक बार जरा मुझे फिर से बताओ तो। क्वेश्चन पढ़ के बताओ कोई मुझे। Ma'am, give 4 example of human-made environment. नहीं, इसके पहले वाला क्वेश्चन जिसका ये आंसर दे रहा था भव्य। Which are the major components of the environment? द मेजर कॉम्पोनेंट्स ऑफ एनवायरमेंट, ये यहाँ लिखे हुए तो हैं। द मेजर कॉम्पोनेंट्स ऑफ एनवायरमेंट आर नेचुरल कॉम्पोनेंट, उसके अंदर ये चारों लिखो, एयर, वाटर, ये एटमोस्फियर, हाइड्रोस्फियर, लिथोस्फियर, बायोस्फियर। पॉइंट 2 लिखेंगे ह्यूमन मेड, फॉर एग्जाम्पल बिल्डिंग, पार्क, ब्रिजेस एटसेट्रा एटसेट्रा। फिर थर्ड पॉइंट ह्यूमन, इंडिविजुअल, फैमिली, कम्युनिटी, रिलीजन, एजुकेशन एटसेट्रा एटसेट्रा। ये वाले डायग्राम में से आंसर निकलेगा इसका। ओके, पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, हमें एग्जाम्पल लिख लेना है इसमें से। ओके, नेक्स्ट, ये 4 एग्जाम्पल्स ऑफ ह्यूमन मेड एनवायरमेंट, ये तो यहीं से निकाल लिए हमने, इसी डायग्राम में से। कोई से भी आप इसमें से 4 लिख सकते हो। कितना माइक चल रहा है, क्या है ये? मैम देवेंद्र का। क्लासेस चल रही हैं। Ma'am, Devendra का। Ma'am, Devendra. यस मैम। बेटा थोड़ा ध्यान रखा करो। व्हाट इज लिथोस्फीयर? गौरिक बताओ। Lithosphere is a solid crust or a hard top layer of a earth. It is made up of rocks and minerals and covered by a thin layer of a soil. सबसे Page पहले क्या number बताते 3. हो? पेज नंबर पहले बताया करो। Page number 3, natural environment. ठीक है, नेक्स्ट, which are the 2 major components of biotic environment? रुक जाओ, हिमांशु बताओ। Ma'am, the 2 major components of biotic environment are plant and animal. ओके, Ma'am, page number. Ma'am, page number 2. व्हाट इज बायोस्फीयर? प्रियतम बताओ। Plants and animal kingdom together make biosphere or the living world. It is a narrow zone of the earth where land, water and air interact with each other to support life.
बेटा पहला वाला लाइन नहीं आएगी, दूसरी वाली लाइन आएगी और पेज नंबर बता दो सबको। मैम 4th। ठीक है, नाउ टिक द करेक्ट आंसर। देवेंद्र बताओ, टिक द करेक्ट आंसर। मैम तुम्हारा नाम देवेंद्र है? देवेंद्र, यस मैम। बेटा आंसर बताओ टिक द करेक्ट आंसर के। व्हाट इज विच इज नॉट अ नेचुरल इकोसिस्टम? ए मैम। Desert is not a natural ecosystem. Sure. यस मैम। Try again. बताओ। बाकी के दोनों में से कोई सा एक बताओ, कौन सा होगा? एक्वेरियम या फॉरेस्ट? देवेंद्र जल्दी आंसर दो बेटा, टाइम नहीं होता है क्लास में, बहुत लिमिटेड टाइम है हमारे पास। तीनों नहीं है, बहुत बढ़िया। ध्यान दो जरा, तुम चैप्टर ध्यान से नहीं पढ़े हो, पता नहीं क्या बोल रहे हो। चैप्टर पढ़ना पड़ेगा तुम्हें। देवांशी बताओ। मैम एक्वेरियम बी। नेक्स्ट, which is not a component of human environment? मैम लैंड ए। Which is a human made environment? मैम सी। मैम सी रोड। Which is a threat to environment? मैम ग्रोइंग पॉपुलेशन। ठीक है, गुड, ओके। नेक्स्ट आते हैं मैच द कॉलम में। रानी बेटा मैच द कॉलम के आंसर बताओ। मैम आप अपने पेज का थोड़ा जूम करिए ना। एक मिनट रुक जा बेटा। क्या थोड़ा सा इंटरनेट वीक है तो उसकी वजह से वो पूरी तरह खुल नहीं पा रहा है। हाँ रानी बेटा मैच द फॉलोइंग के आंसर बताओ। अनुष्का मैच द कॉलम के आंसर बताओ। Yes, ma'am. Biosphere narrows in where land, water, and air interact. Atmosphere, blanket of air which surrounds the earth. Hydrosphere, domain of water. Environment, gravitational force of the earth. हाँ लास्ट वाला गलत है, एनवायरमेंट बताओ। मैम आर सराउंडिंग। Our surrounding. Ma'am, Yes. our surrounding. Yes, our surroundings. All right. संस्कृति give reasons का पहला आंसर बताओ। Man modifies his environment. Ma'am, on page number 4, in the human environment, the human beings interact with the environment and modify it according to their need. बेटा वो तो है, लेकिन उसने पूछा है give reasons why human beings do that. Ma'am, according to their needs. To satisfy their needs लिखो यहाँ पे, थोड़ा सा वर्ड्स को चेंज करना पड़ेगा। To satisfy their needs. Ma'am, in which page number? बता बेटा पेज नंबर बता। 4। ओके देवांश। Which paragraph? ma'am, line. बेटा लाइन भी बता दो संस्कृति। Ma'am, under the human environment section. First line. ओके देवांश कहाँ गया देवांश? अक्षत लास्ट वाला आंसर बताओ। प्लांट्स एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन ईच अदर।
मैम मैं आए? अक्षत कहाँ है? मैं अक्षत से बात कर रही हूँ बेटा अभी। अल्फेज। मैम अतीशा। बेटा रुक जा अतिशय, मैंने नाम नहीं लिया ना अभी। अल्फेज, क्वेश्चन पूछ रही हूँ, आंसर बताओ। अखिल। यस मैम। आंसर बताओ बेटा लास्ट क्वेश्चन का। नहीं आता है, नहीं करके आए हो तो बता दो, अपना और मेरा दोनों का टाइम वेस्ट मत मैम करो। नहीं करा। तो बेटा क्यों नहीं करा? क्या चाहते हो? इंटरनल असेसमेंट में मार्क्स नहीं दूंगी, बिल्कुल मैम सीधे। कोर्स नहीं आया मैम मेरा। क्या नहीं आया? कोर्स। कोर्स कैसे नहीं आया? कोर्स तो बेटा सीबीएसई ने सालों पहले रिलीज कर दिया है, तुम बुक क्यों नहीं लेकर आए हो? किस दिन का इंतजार कर रहे हो? क्लासेस तो शुरू हो गई हैं। क्या कह रहे हो? मैम अभी खरीद कर मिला है। बेटा कब लाओगे? स्कूल तो शुरू हो गया ना। मैम कल लाएंगे भाई। कल लेकर आओगे, एक चैप्टर पीछे हो जाओगे। आज ही जाओ और बुक्स लेकर आओ। मैम हम बहुत दूर रहते हैं। बेटा कहीं भी रहते हो लेकिन पढ़ना तो जरूरी है ना। और पहले लेकर आना चाहिए। क्या आपको पता नहीं था 5 से स्कूल शुरू हो रहे हैं? बहुत दिन पहले चली गई थी ना इन्फॉर्मेशन की 5 अप्रैल से स्कूल शुरू होंगे। स्कूल शुरू होने से पहले बुक लेकर आते हैं ना। यस मैम। अब जल्दी से अपनी बुक का इंतजाम करो, अगली बार मैं इसको कंसिडर नहीं करूंगी इस बात को कि तुम्हारे पास बुक नहीं है। नहीं तो ओके ऑनलाइन मैम। पढ़ो। जो ई पाठशाला पे मैं बुक खोल के पढ़ रही हूँ उसमें आप भी पढ़ सकते हो। इधर नीचे हार्दिक कलावत, आंसर बताओ मुझे। प्लांट्स एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन ईच अदर, गिव रीजन। हार्दिक, मैम मैं आए? तुम्हारा नाम हार्दिक है तो तुम बताओ, और अगर तुम्हारा नाम हार्दिक नहीं है तो तुम चुप रहो। हार्दिक, बेटा मैं कुछ पूछ रही हूँ, तुमसे बात कर रही हूँ, जवाब नहीं दोगे तो मैं उसे मानूंगी कि तुम क्लास में बैठे ही नहीं हो। पल्लव, आंसर बताओ। ये जितने लोगों के जवाब नहीं आ रहे हैं ना बेटा, मैं तुम्हें कंसिडर करूंगी कि तुम क्लास में बैठे ही नहीं हो। और जब पीटीएम होगी तो मैं यही बताऊंगी कि तुम मेरी क्लास अटेंड नहीं करते हो, बस तुम्हारी अटेंडेंस लगती है। फिर जब आपके पेरेंट्स मुझसे पूछेंगे इसके मार्क्स क्यों नहीं आते हैं, तो मेरे पास बहुत अच्छा जवाब है। और इंटरनल असेसमेंट के 15 मार्क्स मैं देती हूँ, 15 में से 0 दूंगी अगर आप मेरी क्लास में मुझसे बात नहीं करेंगे तो, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो। प्रत्युष्म, बेटा मैं सबके नाम नोट करती जा रही हूँ। प्रिंस, बताइए। गिव रीजन व्हाई प्लांट्स एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन ईच अदर। इधर सलोनी। मैम बोलूं? हाँ प्रिंस, बोलो बोलो। Plants and animals depend on each other because some animals eat plants and some plants eat animals. Suppose antivorous plants. बेटा वो तो ठीक है लेकिन सारे प्लांट्स तो नहीं खाते ना, इसका एक और सिंपल सा आंसर है। सलोनी बताओ। पॉइंट आपका गलत नहीं है लेकिन हम ना बहुत सिंपल आंसर लिखेंगे इसका। मैम हमारी बुक खो गई थी इसलिए हम कर नहीं पाए होमवर्क।
तो ऑनलाइन तुम्हें बुक निकालना नहीं आती क्या? तुम तो कितने स्मार्ट बच्चे हो बेटा, सारी बुक की पीडीएफ निकल जाती है। तो दोनों ने ही नहीं किया होगा भाई बहन ने। चलो आरुष आंसर बताओ इसका। मैम द प्लांट्स एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर देयर फूड। और देयर मैम फूड। फूड, अच्छा। इधर आतिश है, बताओ। Yes, ma'am. All plants, animals, and human beings depend on their immediate surroundings. Often, they are also interdependent on each other. कैसे? बता देवांशी। Because plants are the producer and animals are the consumers, plants release oxygen in their atmosphere, which is inhaled by human beings, and human exhales carbon dioxide, which help plant in producing their own food. आंसर बिल्कुल सही है, जहां से भी करके आई है, गुड। ठीक है बेटा, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की बात हो रही है। एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग्स दे इनहेल ऑक्सीजन एंड एक्सहेल कार्बन डाइऑक्साइड, और प्लांट्स में बिल्कुल उल्टा होता है, दे इनहेल कार्बन डाइऑक्साइड एंड एक्सहेल ऑक्सीजन। मैम पेज नंबर कौन सा है? Which page on बेटा ये वाला बुक में नहीं है। यस मैम, ये बुक में से नहीं है। बेटा ये वाला आंसर ना बुक में नहीं है, गिव रीजन के आंसर्स ना बुक में नहीं होते हैं, ये आपको बाहर से ढूंढने पड़ते हैं। तो इसको आप कहीं लिख लो, अपने वर्ड्स में लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। बात मैम को मैं समझ चैट लो। बॉक्स में राइट करके भेज दूं? नहीं बेटा, सब अपने हिसाब से लिखेंगे, सबको थोड़ी तो मेहनत करने दो, सब कुछ हम थोड़ी पका के खिलाएंगे, थोड़ा सा आप भी करना सीखो। आंसर को समझ लो क्या है और अपने वर्ड्स में लिखो। तो ये चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है, डिक्लेयर दिस चैप्टर क्लोज। इसके बाद अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो फिर मुझे अगली क्लास में बताना। और अगला हम लोग पढ़ेंगे, अगली क्लास कब है? नेक्स्ट वीक है ना? रुको लेट मी चेक तुम लोगों की क्लास on Wednesday. रुक जाओ, टाइम टेबल देखने दो मुझे। तुम्हारी क्लास अगले वेडनेसडे को है। मैं आप लोगों को एसपीएल का चैप्टर 1 एक बार रिपीट करवा दीजिए। क्या मैम देवांशी से एक बार रिपीट करवा दीजिए। अब तुम लोग ये जब अपलोड होगी ना क्लास, उसमें देखना। देवांशी क्यों बार बार रिपीट करेगी? क्या तुम्हें ढूंढ के नहीं लाना था आंसर? पहली बात तो तुम ढूंढ के नहीं लाए, तुम गलत आंसर तो बताओ। मैं बहुत नाराज हूँ तुम लोगों से, तुम लोग आंसर सही से नहीं दे रहे हो, एक्टिविटी में ढंग से पार्ट नहीं लेते हो। अगली क्लास में मैं एसपीएल का चैप्टर 1 पढ़ाऊंगी, ऑन इक्वालिटी। सब लोग पढ़ के आएंगे, ठीक है? पूरा वीक है आपके पास, आपकी कोई बहुत ज्यादा क्लासेस नहीं लगती है, मुझे पता है आपकी केवल 2 ही क्लास लगती है। खुद से जल्दी जल्दी पढ़ो और बहुत सारा पढ़ो। मैम क्या मैम हमें ऑन इक्वालिटी के क्वेश्चन आंसर्स भी ढूंढ के रखने हैं? नहीं, पहले हम वो चैप्टर पढ़ेंगे, वेडनेसडे को चैप्टर पढ़ेंगे, थर्सडे को क्वेश्चन आंसर करेंगे। ओके मैम। मैम हमें कॉपी में गिव रीजन तक लिखना है? क्यों नहीं लिखना है? ओके मैम। जितनी सारी चीजें डिस्कस हुई है सब कुछ आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। और प्लीज दोनों साइड लाइन वाली कॉपी बनाना। मैंने कभी नहीं बोला है कि एक साइड खाली वाली कॉपी बनाओ। मेरी क्लास में मेरी भी थोड़ी सुन लिया करो, अपनी कम चलाया करो। मैम ड्राइंग नहीं बनाना? मैंने बोला क्या ड्राइंग बनाना? क्या मैंने अभी तक बोला? तो तुम अपने मन से क्यों चल रहे हो? जितना बोल रहे हैं बेटा पहले उसको ध्यान से सुना करो। आपके आइडियाज भी वेलकम किए जाएंगे जब जरूरत होगी तब।